Hello, good morning all of you. So let's start with the 11th science biology. So in 11th biology we have started with the number 9, that is in biomolecules. So in biomolecule we have studied about the lots of molecules which is responsible for the formation of our bodies. Generally they are divided into two types, organic and inorganic. Organic molecule further divided into two types, that is in micromolecules as well as macromolecules. As they are found in the living system, that's why they are known as in biomicromolecules as well as biomacromolecules. Okay, so we have started the first molecule, that is a biomicromolecule, whose size is smaller, which is having a simpler structure, who's having a molecular weight very low, as well as various examples, that is in carbohydrate, and among the carbohydrate, specifically the monosaccharide and oligosaccharide are known as in biomicromolecules. Understood? Next one, that is an amino acid, lipid, and now the next biomicromolecule, that is in nucleotides. So we have learned about the carbohydrate, that is monosaccharide and oligosaccharide. We have also learned about the amino acids. We have also learned about the lipid. Okay. Next biomicromolecule, that is in nucleotides. Generally nucleotides are known as a monomer. Nucleotide किसे बोलेंगे हम? This is a type of a monomer. And this monomer is responsible for the formation of a nucleic acid. Okay, so this nucleotide is responsible for the formation of a nucleic acid, and that's why we can also say that this nucleotide is a monomer of a nucleic acid. ओके, एक से ज्यादा ये जो न्यूक्लियोटाइड से सपोज इस तरह से जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे। न्यूक्लियोटाइड है एक से ज्यादा है इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज आल्सो नोन एज ए न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देगा। And this polynucleotide chain is also known as nucleic acid. Okay, so understood where this nucleotide is participating. Nucleotides are participating in the formation of a nucleic acid. Okay. For the formation of a nucleotide, ये तो पता चल गया कि वो न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। अब हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो किन किन चीज से बना होगा, उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सो जनरली बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड द स्ट्रक्चर फॉर्म व्हिच इज नोन एज ए न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टूड? बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड द अनदर स्ट्रक्चर फॉर्म व्हिच इज नोन एज ए न्यूक्लियोसाइड। ओके, so generally for the formation of a nucleotide mainly three component is needed, that is first one is pentose sugar, second one that is a nitrogenous base, and third one that is phosphoric acid. ओके, तीन चीज की जरूरत पड़ेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। सो फर्स्ट वन दैट इज पेंटोज शुगर। हमने कितनी सारी पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ा था? अंडरस्टूड? आपने राइबोज शुगर पढ़ा था, डीऑक्सीराइबोज शुगर पढ़ा था, ज़ाइलोज पढ़ा था, सेल्यूलोज है, ये सब शुगर पढ़ी थी व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ पेंटोज शुगर व्हिच इज हैविंग ए 5 कार्बन। ओके, सो पेंटोज शुगर किसे बोलेंगे? व्हिच इज हैविंग ए 5 कार्बन। तो यहां पर स्पेसिफिकली which sugar is participating in the formation of nucleotide, that is ribose sugar as well as deoxyribose sugar। understood? कौन-कौन सी शुगर में वो पार्टिसिपेट करेगी? राइबोस और deoxyribose sugar।
यह also 1 2 3 4 and 5 पांच कार्बन की बनी है। दो तरह की ऐसी शुगर होती है which is participating in the formation of a nucleotides। understood? So first one that is ribose sugar and deoxyribose। okay, ribose sugar as well as deoxyribose sugar। now what is the difference between ribose and deoxyribose sugar? you can see here in second position, यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड पोजीशन है सेकंड कार्बन, वहां पर देखिए यहाँ पर जो डाउनवर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है इन द सेकंड कार्बन ऑफ एन राइबोस शुगर, deoxyribose sugar पर in place of an OH only H is present, oxygen is removed out, ऑक्सीजन है वो निकल गया, and that's why the sugar is known as a deoxy। understood? ये याद रखना, it is a deoxy not a dioxy। दोनों का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कई बार कई स्टूडेंट को डाइऑक्सी लिखते हैं, डाइऑक्सी का मतलब डाई यानी कि दो हो जाते हैं, एंड ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन। तो डाइऑक्सी का मतलब क्या हो जाएगी कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आउट। okay, so here from the second carbon of an pentose sugar, from the second carbon of an ribose, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है then the sugar is formed, the sugar is known as a deoxyribose sugar। understood? so either ribose or deoxyribose is participating in the formation of a nucleotide। अगर ribose sugar participate करता है then the nucleic acid form is known as an RNA। राइबोस शुगर है वो कौन से न्यूक्लिक एसिड में होगी? आरएनए। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है तो वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है दिस चेन इज नोन एज डीएनए। अंडरस्टूड? यहां पर देखिए आरएनए एंड डीएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं इन एवरी ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए। RNA that is ribonucleic acid, राइबो यानी कि शुगर कौन सी है? राइबोस शुगर। DNA उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस यानी कि कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो पेंटोस शुगर अगर RNA है तो वो कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनाएगा? सॉरी, पेंटोस शुगर अगर राइबोस है तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनाएगा? RNA। पेंटोस शुगर अगर डीऑक्सीराइबोस है तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनाएगा? दैट इज डीएनए। एक बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जनरली ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं there are two types which are participating in the formation of a nucleic acid, purines and pyrimidines। दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे which will forms are nucleotide, purines and pyrimidines। understood? ये जो purines and pyrimidines है they are having a ring structure। उसके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिंग का स्ट्रक्चर होता है। understood? purine is having a two membered ring। यहाँ पर कितनी रिंग होगी? two ring structure। और ये जो pyrimidine है it is only one ring structure। ओके, टू रिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा रिंग का, इस तरह का। इस तरह की अगर रिंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है then we can say this is an purine। understood? pyrimidine है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का। understood? यहाँ पर देखिए purine is two ring structure, यहाँ पर दो रिंग स्ट्रक्चर है। pyrimidine is one ring structure, यहाँ पर देखिए एक ही रिंग स्ट्रक्चर है। understood? now the example of a purine is
पिरिमिडिन जो है उसके जो एग्जांपल्स है आर्मी साइटोसिन आर्मी एंड यूरेसिल okay so the example of an purines are an adenine and guanine example of pyrimidine that is an cytosine thymine as well as uracil is indicated by capital C cytosine thymine is indicated by capital T and uracil is indicated by capital U एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जनरली हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं फोर नाइट्रोजनस बेसिस कितने होंगे फोर नाइट्रोजनस बेसिस होंगे व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड आरएनए बनाने में भी चार ही नाइट्रोजनस बेसिस लगेंगे और डीएनए है उसको बनाने में भी चार नाइट्रोजनस बेसिस लगेंगे अंडरस्टूड लेकिन अगर आप यहाँ पर टोटल करिए तो कितने होते हैं पांच नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ओके तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब डीएनए होता है डीएनए फॉर्म होता है तो डीएनए में कौन सा होता है थायमिन होता है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा कौन सा पिरिमिडीन होगा दैट इज एन थायमिन अंडरस्टूड और आरएनए जब होगा आरएनए बनेगा तो इंस्टेड ऑफ एन थायमिन व्हिच पिरिमिडीन इज प्रेजेंट दैट इज एन यूरेसिल तो यूरेसिल है इसमें प्रेजेंट होगा आरएनए अंडरस्टूड बाकी के जो है एडेनिन गुआनिन एंड साइटोसिन ये तीनों नाइट्रोजनस बेसिस है व्हिच इज प्रेजेंट इन डीएनए एज वेल एज आरएनए कॉमन हो गए ये तीनों लेकिन डिफरेंस कहां पर होगा सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस में दैट इज एन थायमिन एंड यूरेसिल इन डीएनए थायमिन इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन व्हिच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट दैट इज एन यूरेसिल ये एक बात ध्यान में रखनी है तो डीएनए और आरएनए में अगर डिफरेंस की बात करें तो एक पेंटोस शुगर पर डिफरेंस था in case of an DNA deoxyribose sugar is present in case of an RNA ribose sugar is present नाइट्रोजनस बेस है उसके आधार पर भी एक डिफरेंस बन जाता है in case of an DNA thymine is present and in case of an uracil instead of an thymine which nitrogenous base is present that is an uracil adenine guanine and cytosine is common in both DNA as well as RNA understood oh अगर स्ट्रक्चर की बात करें ओके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एडेनिन है गुआनिन है साइटोसिन है थायमिन है उसके स्ट्रक्चर है वो कैसे होंगे एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा ये जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर क्या होगा NH2 अंडरस्टूड यहां पर नेमिंग किस तरह से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 यानी कि ये जो प्यूरिन की रिंग है वो कितने मेंबर की रिंग है दैट इज 9 मेंबर्ड रिंग अंडरस्टूड और पिरिमिडीन की जो रिंग है इट इज ओनली 6 मेंबर्ड रिंग पिरिमिडीन रिंग इज a 6 मेंबर्ड रिंग एंड प्यूरिन इज a 9 मेंबर्ड रिंग और यहां पर जो फर्स्ट मेंबर है इट इज कार्बन तो पहला जो कार्बन है वहां पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है प्यूरिन में तो ये जो प्यूरिन बन जाता है तो कौन सा प्यूरिन बनेगा दैट इज एडेनिन अंडरस्टूड यहां पर कौन सा बना एडेनिन वैलेंसी आप फुलफिल कर सकते हैं हमें पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है अंडरस्टूड तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल हो गई अब यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है तो ये क्या होगा यहां पर H होगा अंडरस्टूड यहां पर की वैलेंसी फुलफिल हो गई है और यहां पर नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा H होगा तो वैलेंसी फुलफिल करने के लिए क्या होगा यहां पर NH होगा यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर अगर NH2 ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलेंगे NH गुआनिन में क्या होगा उससे उल्टा गुआनिन में NH2 है वो कहां पर होता है थर्ड पोजीशन पर होगा यहां NH2 यहां पर लगा हुआ होगा और जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर डबल बॉन्ड O होगा अब ये जो स्ट्रक्चर बना दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गुआनिन ये जो स्ट्रक्चर बना
guanine. Understood? So these are the adenine as well as guanine. These are the example of an purine. स्ट्रक्चर में भी आपने एग्जांपल डिफरेंस देख लिया. एडेनिन में क्या है, NH2 फर्स्ट पोजीशन पर था और यहाँ पर guanine में NH2 है वो थर्ड पोजीशन पर है और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, ऑक्सीजन यानी कि डबल बॉन्ड को प्रेजेंट है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एडेनिन एंड guanine. अब अगर हम साइटोसिन एंड यूरेसिल एज वेल एज थायमिन की बात करें, obviously it is having a six membered ring. Okay, six membered ring present है. अगर हम यूरेसिल की बात करें, यूरेसिल में सिंपल स्ट्रक्चर है इन बोथ द पोजीशन, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन. ये जो फर्स्ट कार्बन है और थर्ड कार्बन है वहां पर दोनों जगह पर क्या आएंगे, डबल बॉन्ड को प्रेजेंट होगा. अंडरस्टूड? दोनों जगह पर भी क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड को. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है विच इज नोन एज यूरेसिल. ओके, दूसरा होता है थायमिन. अब जो थायमिन है सेम स्ट्रक्चर होगा, थायमिन में सेम स्ट्रक्चर होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पर CH3 जो 6 कार्बन है वहां पर क्या होगा, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थायमिन. ये क्या बन गया, थायमिन. तो थायमिन एंड यूरेसिल का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है. अंडरस्टूड? यूरेसिल में क्या है, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. थायमिन में फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जो सिक्स्थ पोजीशन है, सिक्स्थ कार्बन है वहां पर CH3 ग्रुप भी ऐड हो जाता है और पिरिमिडिन कौन सा बन जाता है, दैट इज थायमिन. और एक पिरिमिडिन है दैट इज साइटोसिन. साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर तो तीनों सेम है, लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है हियर. सो दिस इज नोन एज, अब ये जो बना है दिस इज नोन एज साइटोसिन. ओके, ये जो स्ट्रक्चर बना है वो कौन सा है, साइटोसिन. थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर देखिए, दोनों फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर OH है, वो ऑक्सीजन है नॉट OH, देन इट इज यूरेसिल. अगर 6 कार्बन पर एक और ऐड हो जाता है CH3 तो क्या बन जाएगा, दैट इज थायमिन. साइटोसिन में क्या है कि थर्ड कार्बन पर O है लेकिन फर्स्ट कार्बन पर कौन सा है, दैट इज NH2 ग्रुप. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन adenine, guanine, cytosine, thymine as well as uracil. Nitrogenous bases which is found in case of a nucleotides. Okay, so two components of a nucleotides, there is a pentose sugar as well as nitrogenous bases. Okay, third component that is a phosphoric acid. Simple है, phosphoric acid में कुछ नहीं होता. phosphoric acid में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड. अंडरस्टूड? ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड. तो ये तीन चीजें हैं व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड. ये तीन चीज से हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है. कैसे बनता है, लेट्स सी. ओके, अब क्या देखेंगे कि हमारा न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है. ये तीन कंपोनेंट में से पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एज वेल एज ये फॉस्फोरिक एसिड. जो फर्स्ट वन दैट इज पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर है, अभी हम यहां पर एज एन एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, राइबोस भी ले सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस भी ले. ओके,
शुगर ली है दैट इज राइबोस। अब हमारी जो राइबोस शुगर है उसके साथ क्या बाइंड हो जाता है, नाइट्रोजनस बेस है वो बाइंड होगा। कहां पर बाइंड होता है नाइट्रोजनस बेस, ये जो फर्स्ट पोजीशन है फर्स्ट कार्बन है वहां पर क्या बाइंड होता है, नाइट्रोजनस बेस। अंडरस्टूड। एडेनिन भी बाइंड हो सकता है, गुआनिन भी बाइंड हो सकता है, साइटोसिन भी बाइंड हो सकता है एंड यूरेसिल बाइंड हो सकता है। अंडरस्टूड। यहां पर यूरेसिल मैंने बोला है, देखिए थाइमिन नहीं बोला है। यूरेसिल क्यों बोला है, क्योंकि शुगर कौन सी है, राइबोस। तो राइबोस से कौन से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनेगा, आरएनए। और आरएनए में इंस्टेड ऑफ थाइमिन क्या होता है, यूरेसिल होता है। यानी कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तो होगा ही, उसके अलावा यूरेसिल हो सकता है। यहाँ पर थाइमिन कभी भी नहीं होगा अगर यहाँ पर पेंटोस शुगर राइबोस है तो। अगर पेंटोस शुगर यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस हमने बनाई है तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है वो कौन-कौन से आ सकते हैं, चार, दैट इज एन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर कर लेना है। अंडरस्टूड। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, व्हेन दिस पेंटोस शुगर इज बाइंड विद एन नाइट्रोजनस बेस एंड एन फर्स्ट कार्बन ऑफ एन पेंटोस शुगर, ये वाला देखिए फर्स्ट कार्बन है, यहाँ से नाइट्रोजनस बेस बाइंड हो जाता है बाय फॉर्मिंग ए स्पेसिफिक बॉन्ड, एक तरह का बॉन्ड फॉर्म कर देता है एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके। तो जब हमारा पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ बाइंड होता है तो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो बनता है। अंडरस्टूड। ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर कौन सा बना, न्यूक्लियोसाइड। हां, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसाइड मैंने लिखा है, अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा है। तो पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, when pentose sugar binded with an nitrogenous basis by means of a glycosidic bond, the structure is known as a nucleoside. And the types of nucleoside is based on the nitrogenous base which is bounded on the first position of a pentose sugar. कौन सा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर बाइंड है उसके आधार पर न्यूक्लियोसाइड के अलग-अलग नाम होते हैं। अंडरस्टूड। अगर एडेनिन बाइंड है देन इट इज नोन एज एन एडिनोसाइन, इसको एडिनोसिन बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। न्यूक्लियोसाइड के नाम मैंने बोला है कि अगर यहाँ पर एडेनिन बाइंड है राइबोस शुगर के साथ तो वो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। अंडरस्टूड। एडिनोसिन बोला है मैंने। अगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस है देन इट इज नोन एज डीऑक्सी एडिनोसिन। ये बात ध्यान में रखनी है, राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसके आधार पर भी नाम है वो अलग-अलग होंगे, न्यूक्लियोसाइड है। ओके। तो यहाँ पर अगर राइबोस शुगर है एंड एडेनिन ग्रुप बाइंड है देन इट इज नोन एज एडिनोसिन। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है और एडेनिन बाइंडेड है देन इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। ओके। तो उस तरह से अगर गुआनिन बाइंड है गुआनोसिन, देन साइटोसिन बाइंड है देन इट इज नोन एज साइटिडीन। ये अगर ना साइटिडीन होता है ना, और अगर यूरेसिल बाइंड है देन इट इज नोन एज यूरिडीन। So these are the four types of a nucleoside which can be formed by binding of a ribose sugar with a nitrogenous bases. अगर डीऑक्सीराइबोस होगा डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड यहाँ पर अगर डीऑक्सीराइबोस है तो यूरेसिल नहीं आएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। अंडरस्टूड। ये याद रखना है। ओके। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर बना है उसके साथ अगर थर्ड कंपोनेंट भी बाइंड हो जाता है, व्हिच इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड को कहाँ पर बाइंड होता है, फिफ्थ कार्बन पे। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये वाला फिफ्थ। फिफ्थ कार्बन पर CH2OH ग्रुप है वो प्रेजेंट है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या
तरह का ग्रुप होता है फॉस्फोरिक एसिड के पास। तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन ऑफ एन पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड का जो OH है उसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस तरह से कुछ बॉन्ड है वो फॉर्म होगा। ओके, तो फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड आकर बाइंड हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना पूरा का पूरा, दैट इज पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, तीनों के तीनों बाइंड हो गए। अब जो स्ट्रक्चर बना इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, अब कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इट इज बेस्ड ऑन द नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच इज बाइंडेड टू दिस न्यूक्लियोटाइड। अगर एडेनिन है देन इट इज नोन एज एडिनोसिन, और जितने फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर बाइंड है उतने नंबर आएंगे। जैसे यहाँ पर एक अभी फॉस्फोरिक एसिड हमने बाइंड करवाया है, देन इट इज नोन एज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। So this structure is known as adenosine. Why adenosine? क्योंकि यहाँ पर देखिए पेंटोस शुगर राइबोस है, एडेनिन है वो नाइट्रोजनस बेस है, और दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं which is known as adenosine, which is a type of a nucleoside. अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड बाइंड हुआ है, then the name is known as adenosine monophosphate. ओके, अगर यहाँ पर ग्वानिन है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर यहाँ पर साइटोसिन है देन इट इज नोन एज साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरेसिल है देन इट इज नोन एज यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अंडरस्टूड? अगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर है देन इट इज नोन एज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। समझ में आया? ओके, so this is about, we can say, a nucleotide which is the monomer of a nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड दो तरह के फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम आर न्यूक्लियोटाइड, दैट इज आरएनए एज वेल एज डीएनए। अगर राइबोस शुगर है देन आरएनए फॉर्म होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर है देन डीएनए फॉर्म होगा। दूसरा, आरएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन से होंगे, एडिनोसिन एडेनिन ग्वानिन थाइम, एडेनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन तो होगा, लेकिन आरएनए है तो यूरेसिल होगा। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तो होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ आरएनए क्या होगा, थाइमिन प्रेजेंट होगा। ओके, ये डिफरेंसेस है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट a nucleotide which is responsible for the formation of a nucleic acid. So we can say that the nucleotides